Hello everyone, online class 9, subject history, chapter 2, part 1.3, the coming of socialism to Europe. यूरोप में समाजवाद का आना. Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. By the mid-19th century, in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. समाज में पुनर्गठन के संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली इस विचारधारा समाजवाद ही थी. 19वीं सदी में मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था. उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था. Socialists were against private property and say it has the root of all social ills of the time. Why individual honored the property that gave employment, but the proprietors were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. So if society as a whole rather than single individual controlled property, more attention would be paid to collective social interest. Socialists wanted this change and campaigned for it. समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध थे, यानी वह संपत्ति पर निजी स्वामित्व के सही नहीं मानते थे. उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था की ही सारी समस्याओं का जड़ है. वह ऐसे क्यों मानते थे कि उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिसकी दूसरों के रोजगार भी मिलता था, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब हो रहता था. वह उनके बारे में नहीं सोचता था जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते थे. इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों के ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है. समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे कि उनके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया. हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिक ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर. सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स. रॉबर्ट ऑन 1771 to 1858, a leading English manufacturer sought to build a cooperative community called New Harmony in Indian USA. Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale, only thought individual initiative. They demanded that governments encourage cooperative in France. For instance, Louis Blanc 1813-1882 wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be associations of people who produced together and divided the profit according to the work done by member. समाजवादी के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी. कुछ समाजवादी को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी. इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय का नाम से एक नए तरह का समुदाय की रचना का प्रयास किया. कुछ समाजवादी मानते हैं कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेती में नहीं बनाए जा सकते. वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे. उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे. कोऑपरेटिव जैसे लोगों को समूह थे जो मिलकर चीज़ बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे. नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स 1818 to 1883 and Friedrich Engels
8020 to 8095 added other ideas to the body of agreement. Marx agreed that industrial society was capitalist honored the capital, invested the factory, and the profit of capitalist was produced by worker. The conditions of worker could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalist. Worker had to overthrow capitalism and the rule of private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitations, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a community society. He was convinced that worker would triumph in their concept with capitalist. A communist society was the natural society of the future. नेक्स्ट क्या है, कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 तक और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने एक नई दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों को मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे जब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों की पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण में मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिससे सारी संपत्ति और पूरे समाज को यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को सभ्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के लिए समर्थन। वाई द 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रूआउट यूरोप टू coordinate their efforts. Socialists formed an international body, namely the Second International. 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों के समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party (SPD) and helped in win parliamentary seats. By 1905, socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. However, till 1915, socialists never succeeded in forming a government in Europe represented by strong figures in parliamentary politics. Their ideas did shape legislations, but government continued to be run by conservatives, liberal and radical. अब इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन की और कार्यस्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में भी ये पार्टी भी मदद करती थी। 1905 में तक ब्रिटेन ने समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली और फ्रांस में भी सोशलिस्ट
पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का भी दबदबा बना रहा। थैंक यू।